Welcome students in our another video tutorial of Biology Point. Today we discussing about the molecular mechanism of the seed germination. This video is based on the molecular mechanism. We can say it the hormonal mechanism, we can say it the genetical mechanism that is regulated by the hormone or genes. So watch this video till the end, and if you like it then share and subscribe my channel, and if you have any doubt ask me in the comment box. In this video we told about the mechanism, that means how seed germination become faster, become slower, and how seed germination is inhibit, as we can say how it is prevent to germinate to grow the plant. Students, there are many factors in the seed germination. These factors may be the external, may be the internal. External factors are the abiotic factors like light, temperature, water, air, type of soil, etc. And internal factors are the seed viability, seed dormancy, and types of seed coat या hardening of seed coat. So various factors are affecting the seed germination, but in this video we can study only and only molecular mechanism. So start this video. First of all, we define what is the germination. Germination in plant is the process by which a dormant seed begin to sprout and grow into a seedling under the right growing condition. That means germination is a process in which seed grow into a new plant under favorable condition, under optimal condition. Students, seed become germinate due to the releasing of dormancy, because when we harvested the seeds from the field, seed go into the dormant period. As we can say, the division of cell, division of embryo becomes stop due to the dormancy. But we want to germinate the seed to growing new plant, so must needed the release of dormancy. So first of all we add this point for the germination. So that means seed germination is a process in which seed become released from dormancy and grow into the new plant in under favorable condition, under optimal condition. This is the definition. Now we start next point, regulators of the seed germination. There are many regulators. We can describe the regulators in two categories. First one is hormones and second one is chemicals. There are must be confusions because the hormones also are chemicals, but we can separate study. Hormones are hormones and then chemicals are chemicals. There are many hormones, as we know that these are the plant growth hormones, these are the plant inhibitor hormones. तो हम इसके अंदर वो भी बात करेंगे कि कितने प्रकार के हार्मोन हमें देखने को मिलते हैं. तो हम बात करते हैं. देयर आर मैनी हार्मोन्स. फर्स्ट वन इज द जिब्रेलिक एसिड, सेकंड वन इज इथाइलिन, थर्ड वन इज एब्सिसिक एसिड, फोर्थ इज ऑक्सिन, फिफ्थ इज ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, एंड लास्ट वन इज साइटोकाइनिन. These are the hormones that regulate seed germination. What is the function of hormones in the seed germination? We can study in next slide. And second point is chemical. Chemical are the most components that affect the seed germination. As we can say, these are the indirect regulators because they regulate with hormones, but these are some other types. First one is nitric oxide and second one is phytochrome. These are the chemicals that regulate the seed germination. Next, for the study of seed germination mechanism, we can study about the signaling of seed germination.
It is a very interesting topic and very crucial topic, because so many students have confusion in this point. What is the signaling and how we can perform it? Now we can start this. There are four to five type of signaling that regulate the seed germination. First one is gibberellic acid and abscisic acid signaling. This is the interdependent signaling that depend each and one. And second one is nitric oxide based signaling. Third one is phytochrome based signaling. And fourth one is gibberellic acid signaling. And fifth one is that is the ethylene signaling. तो 5 प्रकार की सिग्नलिंग जो है वो सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करती है. तो सबसे पहले जो हमारी सिग्नलिंग होगी वो होगी जिब्रेलिक एसिड एंड ABA सिग्नलिंग. जिब्रेलिक एसिड एंड ABA सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिक एसिड और ABA सिग्नलिंग में, बिकॉज बोथ आर द प्लांट growth regulators, because gibberellic acid is a mainly plant growth regulators promoters, but abscisic acid is a inhibitor, या you कहें कि it is a stress hormone, but they have a combined effect on seed germination. So we can add both the name are in one point, gibberellic acid and ABA signaling. So start it. This one is gibberellic acid and ABA signaling. Very important and very crucial topic, but very interesting and very simple also. So focus on the signaling. First of all, gibberellic acid is also known as the plant growth promoter, as we know from the secondary and higher secondary level, from graduation level. But we can saw that gibberellic acid work as also the seed germination regulator, but it work as a combined effect with ABA. ABA is abscisic acid, also known as stress hormone that provide stress. इसका नाम तनाव हार्मोन रखा इसलिए गया क्योंकि बिकॉज ये तनाव ही देता है और कुछ नहीं करता इसके अलावा. फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन फॉर रेड लाइट. स्टूडेंट्स, in our first video of seed germination we can told about the light, which light having 660 nanometer wavelength is known as red light, and which one is 736 nanometer wavelength is a far red light. And we can know that red light is inhibit seed dormancy, as we can say it promotes seed germination, but far red light is prevent germination. Very important point है. When far red light is इंसिडियंट ऑन जैसे जिब्रेलिक एसिड, या यूँ कहें कि जिब्रेलिक एसिड जो है फॉर रेड लाइट की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. तो जिब्रेलिक एसिड बिकम इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ फॉर रेड लाइट. दिस साइन वेयर वी सॉ दिस साइन, दैट मीन्स इज ए प्रिवेंट, दैट मीन्स इज इनहिबिट, वेयर वी कैन से दैट सी दैट. So we can say it when gibberellic acid connect with the far red light, it become prevent. Again, if gibberellic acid comes under the high temperature condition, again it become prevent of the synthesis. That means in the condition of far red light and in the condition of high temperature, synthesis of gibberellic acid is become stop. Very important point. Now if gibberellic acid synthesis become stop, then gibberellic acid also stop the DALA. Again this sign indicate again prevention. That means gibberellic acid again stop the synthesis of DALA. What is the DALA? DALA is a protein. That means, and the full form of DALA is the deleting 17 amino acids. It is a group of amino acids that known as the deleting 17 amino acids. Students, all short forms will be found in the comment description box with the full forms. So don't confuse about this, okay, how we remember it. In description box all short forms will be described.
तो नाउ डेला इज द डिलीटिंग 70 अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम कहें कि फॉररेड लाइट और हाई टेम्परेचर मिलेगा तो जिब्रेलिक एसिड तो सिंथेसिस रुक ही जाएगा, इसका मतलब आप जर्मिनेशन की तो बात करो ही मत। लेकिन हमने कहा कि जिब्रेलिक एसिड अगर बन जाता है, मान लीजिए जिब्रेलिक एसिड अगर बन जाता है, दैट मीन्स जिब्रेलिक एसिड अगर बन जाएगा तो ये डेला के सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। और इनिबिट अगर कर देगा तो इसको हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिक एसिड वर्क एज ए प्रिवेंटर ऑफ द डेला। नाउ what is the DELA? DELA found in the dormancy condition. DELA found in the dormancy condition. DELA found in the drought condition, dry condition. So it, we can say it DELA is a inhibitor of germination. If we can say it, if DELA is found in the seed, seed cannot be germinate. It is must rememberable point. If DELA is found in a seed, whenever it found, I don't know, but whenever it is found in the seed, it become prevent the seed to germination. Now DELA is promote the synthesis of ABA. डेला प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ABA, स्ट्रेस हार्मोन के सिंथेसिस को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। देन ABA जैसे ही सिंथेसिस हो जाता है, इसका हो जाता है, तो ये ABA सिंथेसिस करता है किसका, ABI का, ABI5 का। और व्हाट इज द ABI5? ABI5 इज है एब्सिसिक एसिड इंसिटेटिव 5, एब्सिसिक एसिड इंसिटेटिव 5, ABI5 इज द एब्सिसिक एसिड इंसिटेटिव 5। नाउ जैसे ही ABA सिंथेसिस होगा, ABA सिंथेसिस होने के साथ ही यहाँ पे ABI5 का सिंथेसिस होगा, और ABI5 जो है इन सीड्स को जर्मिनेशन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब इन सीड्स के जर्मिनेशन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इस जिब्रेलिक एसिड और ABA सिंथेसिस से हमने क्या देखा कि अगर जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस अगर हो जाता है तो जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस की वजह से डेला का सिंथेसिस नहीं होगा, डेला का सिंथेसिस नहीं होगा तो एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा, एब्सिसिक एसिड नहीं बनेगा तो ABI5 नहीं बनेगा, और ABI5 नहीं बनेगा तो सीड इजीली क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, पहली बात। लेकिन अगर ये कंडीशन मिलती रहेंगी फॉररेड लाइट वाली और हाई टेम्परेचर वाली, तो जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा, जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा तो डेला का सिंथेसिस होगा, डेला का सिंथेसिस होगा तो ABA बनेगा, ABI5 बनेगा, इसका मतलब सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो दिस वन इज सिग्नलिंग नोन एज द जिब्रेलिक एसिड ABA सिग्नलिंग। आई थिंक ये समझ में आई गई होगी आपको। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, जिब्रेलिक एसिड अगर है तो वहाँ पे सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन जिब्रेलिक एसिड अगर नहीं है तो सीड जो है वो जर्मिनेशन नहीं करेगा, बिकॉज डेला एक बार अगर बन जाता है तो ये ABA बनाएगा, ABA बनेगा तो ABI5 बनेगा, देन उसके बाद में सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। दूसरी बात, डेला के बनने की जो कंडीशन है वो दो कंडीशन और है कि ये डोरमेंसी पीरियड में भी बनता है और ये ड्राई कंडीशन में भी बनता है, दोनों कंडीशन में भी बनता है ये। और ड्राई कंडीशन के अंदर ABA जो है वो डायरेक्ट भी बनता है, इसलिए ये दोनों कंडीशन नहीं आने देनी है हमें। साथ ही ये वाली कंडीशन भी जो है वो सीड को क्या करती है, जर्मिनेशन के लिए रोकती है। तो अगर सीड के जर्मिनेशन की अगर आप रिक्वायरमेंट है, इफ़ वी वांट सीड बिकम जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, वी प्रिवेंट द फॉररेड लाइट कंडीशन, हाई टेम्परेचर कंडीशन, डोरमेंसी कंडीशन एंड ड्रफ कंडीशन। क्लियर बात। नेक्स्ट, second signaling is a nitric oxide based signaling. Second signaling is a nitric oxide based signaling. Now it is a very important signaling again for the germination of seed. नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं एक बार कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्राइट से मिलकर बनेगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग से मिल सकता है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो एनवायरनमेंट में हमें दिखाई देता है। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जिब्रेलिक एसिड के म्यूटेंट्स को क्या करता है, सिंथेसिस के लिए प्रमोट करता है। दीज आर GA3OX1 या यूँ कहें कि GA30X1 एंड 30X2 3OX2, दीज आर द म्यूटेंट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड के उत्परिवर्तित हैं, रूप हैं। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है GA3OX1 के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और जैसे ही ये बनते हैं जिब्रेलिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस हो गया, जर्मिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, साथ ही क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ERF7 की अगर हम बात करें तो ये होता है इथाइलिन रिलीजिंग फैक्टर।
इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर, और इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर को ये क्या नहीं करने देता, बनने नहीं देता। ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर को बनने नहीं देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ERF7 इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर। और अगर इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर नहीं बनेगा तो ये ABI5, अगेन ABI5 अभी हमने देखा था एब्सिसिक एसिड इंसिटेटिव 5, ये उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ये उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उसकी जगह बाइंड कर जाएगा NO। और NO अगर ABI5 से बाइंड कर जाता है तो NO ABI5 से बाइंड कर जाएगा, देन वो क्या सिंथेसिस करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर बन जाएंगे तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जर्मिनेशन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर NO ABI5 के साथ बाइंड कर जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा और ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि NO एक तरीके से जर्मिनेशन को बढ़ा भी रहा है और एक तरीके से जर्मिनेशन को ये रोक भी रहा है। तो डिपेंड करता है कि NO की बाइंडिंग किसके साथ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर NO की मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है CYP77A2, इसका मतलब है साइटोक्रोम, दीज आर द साइटोक्रोम्स। तो NO जो होता है साइटोक्रोम के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और साइटोक्रोम का सिंथेसिस जो है वो प्रिवेंट करता है एब्सिसिक एसिड के फॉर्मेशन को। और एब्सिसिक एसिड नहीं बनेगा तो ABI3 नहीं बनेगा, और ABI3 नहीं बनेगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन को होने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर NO जो है साइटोक्रोम के सिंथेसिस को रोक देता है तो ABA बनेगा, और ABA बनेगा तो ABI3 बनेगा, और इससे जर्मिनेशन रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं वापस जो NO है वो क्या करके जा रहा है, जर्मिनेशन को बढ़ा के जा रहा है। दूसरी बात, NO जो होता है जो NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, इससे हमें NO मिल ही जाएगा। दिस इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी के साथ कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, GLRN1, ये एक प्रकार का अगेन अमाइनो एसिड प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करता है। ये अमाइनो एसिड भी क्या करता है, ABA के सिंथेसिस को रोक के जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी ABA के सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है। तो कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूसिन और ग्लिसरीन, ये क्या करते हैं, ABA के सिंथेसिस को रोकेंगे, और ABA नहीं बनेगा तो ABI3 नहीं बनेगा, मतलब जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये बन जाता है गलती से, ABA अगर बन जाता है तो सिंथेसिस किसका होगा, ABI3 का, और इसके साथ क्या होगा, जर्मिनेशन भी रुक जाएगा। दूसरी बात, सुक्रोज क्या करता है, ध्यान रखना, अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं मतलब ज़्यादा अगर चीनी, ज़्यादा मीठा अगर सीड को दे दिया जाता है तो वो इसके GLR के सिंथेसिस को रोक देता है, और GLR नहीं बनेगा तो ABA बन जाएगा, और ABA बन जाएगा तो जर्मिनेशन रुक जाता है। ध्यान रखना, ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करें कि जो ABA है वो काम क्या करता है। तो ABA का तो काम इतना सही है कि ये ABI5, ABI4, ABI3 का सिंथेसिस करेगा, और अगर ये एक बार बन जाते हैं तीनों के तीनों तो क्या होगा, जर्मिनेशन रुक जाएगा। लेकिन अब हमने क्या देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ABI5 के साथ अगर बाइंड कर जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसके बन जाते हैं, वापस एब्सिसिक एसिड के। इसकी वजह से अगेन जर्मिनेशन रुक जाएगा। मतलब हमें NO को भी बाइंडिंग को रोकना है, तो इसकी बाइंडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है, इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर जो है उसका भी रिलीज होना ज़रूरी है। मतलब NO की ज़्यादा कंडीशन भी जो है कंसनट्रेशन हमें हानिकारक हो सकती है। इसके बाद में ABI4 जो है वो बाइंड करता है CHO1 के साथ, और CHO1 जो है वर्क करता है, काम करता है NO3 माइनस की उपस्थिति में, और ये प्रिवेंट करता है अगेन जर्मिनेशन को। तो ये हमें याद रखना है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड साइटोक्रोम के सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे ABA नहीं बनेगा, और ABA नहीं बनेगा तो ABI3 नहीं बनेगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है साइटोक्रोम के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और साथ ही साइटोक्रोम का सिंथेसिस जो है वो नाइट्रेट से भी बनता है। इसके बाद में कुछ अमाइनो एसिड जो है वो GLR1 के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, जो कि ABA को प्रमोट नहीं करने देता। लेकिन ध्यान रखना, सुक्रोज GLR1 को सिंथेसिस को रोकता है, जिसकी वजह से ABA बन जाएगा, और वापस ABA बन जाएगा तो सिंथेसिस होगा ABI3 का, और जर्मिनेशन रुक जाता है। नेक्स्ट, तो ये सिग्नलिंग थी हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड सिग्नलिंग। सिग्नलिंग की बात करें फाइटोक्रोम बेस्ड सिग्नलिंग, तो वो क्या है। फाइटोक्रोम की अगर बात की जाती है तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि फाइटोक्रोम की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड लाइट सीड बिकम जर्मिनेट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉर रेड लाइट सीड बिकम डॉर्मेंट। तो फाइटोक्रोम की बात करें तो फाइटोक्रोम फॉर रेड जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है RVE12, और RVE1 एक रिवेला
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। रिवेला बेसिकली काम करता है एरिबोडोप्सिस के लिए। एरिबोडोप्सिस प्लांट जो है उसके अंदर ये रिवेला जो फैक्टर है वो काम करता है ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसक्रिप्शन को ये क्या कर देगा, रोक देगा। कौन? PFR, फाइटोक्रोम 4 रेड। इसकी वजह से ये नहीं बन पाएगा RV12, और RV12 जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड म्यूटेंट्स को नहीं बनने देता, और जिब्रेलिक एसिड म्यूटेंट्स को नहीं बनने देगा, इसका मतलब बायो एक्टिव जिब्रेलिन नहीं बनेगा, और इसका मतलब जर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब डोरमेंसी रहेगी। तो यानी कि हमें किस लाइट की ज़रूरत पड़ेगी? PR लाइट की। और अगर PR लाइट मिलेगी तो इससे क्या होगा, ये सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसिस होगा, तो इसका सिंथेसिस होगा, इसका मतलब इसका भी सिंथेसिस होगा और बायो एक्टिव जिब्रेलिन बनेगा। तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लाइट जो होती है, PFR जो होती है, वो जिब्रेलिन के सिंथेसिस को रोकता है, इसका मतलब जर्मिनेशन को रोकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। रिवेला प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है इन दी एरिबोडोप्सिस। थर्ड सिग्नलिंग हमारे पास आती है GA सिग्नलिंग। ये एक स्वतंत्र सिग्नलिंग आप इसको कह सकते हो, जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद GA का काम का होता है इसके अंदर। तो ये सिग्नलिंग क्या है, तो ध्यान रखना कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो सिंथेसिस प्रमोट करता है GID1, और GID1 के सिंथेसिस को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और GID1 का मतलब यहाँ पे है जिब्रेलिन इंस्टीट्यूट डॉर्फ 1, जिब्रेलिन इंस्टीट्यूट डॉर्फ 1। सारे की सारी फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। GID1 जो है वो काम करता है SCF फैक्टर के साथ में, और SCF फैक्टर एक्टिव होता है GID2 की उपस्थिति में। SCF फैक्टर एक्टिव होता है GID2 की उपस्थिति में। तो GID1 जैसे ही बन जाएगा, GID1 जो है वो SLN और SLR एंड RH इन तीनों प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। और ये तीनों प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो ये तीनों प्रोटीन जो है वो GAMYB के सिंथेसिस को रोक देंगे, और GAMYB सिंथेसिस रुक जाएगा तो इससे सीड जो है वो जर्मिनेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो यानी कि वापस जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करके जा रहा है। कैसे? कि ये GID1 को बनाता है, GID1 काम करता है SCF की उपस्थिति में, और SCF एक्टिव होता है GID2 की उपस्थिति में। क्लियर बात यहाँ पे। साथ ही GID1 जो है वो प्रिवेंट करता है SLN, SLR एंड RH को। SLN की बात की जाए तो इसी इट इज़ द प्रोटीन सिलेंडर प्रोटीन, एंड SLR इज़ द डेला प्रोटीन, एंड RH इज़ अ रिड्यूसिंग हाइट, ये हाइट को रिड्यूस करने वाला प्रोटीन होता है। तो यानी कि एक तरीके से ये सारे के सारे इनिबिटर होते हैं जर्मिनेशन के, तो इनको रोक देता है जिब्रेलिक एसिड, और ये आगे वापस रोकता है GAMYB को, और GAMYB रुक जाएगा, तो GAMYB रुक जाएगा तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, GAMYB डायरेक्ट भी प्रिवेंट होता है KGM से, और KGM क्या होता है, ये एक काइनेटिक जिब्रेलिक म्यूटेंटर होता है एक तरीके से, जो कि GAMYB के प्रिवेंशन को बढ़ाता है। तो इसकी वजह से वापस सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो वापस हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का जो सबसे बड़ा योगदान है वो सीड जर्मिनेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारी जो सिग्नलिंग है वो है इथाइलिन बेस्ड सिग्नलिंग। इसके बारे में अगर हम बात करें इथाइलिन बेस्ड सिग्नलिंग की, तो देखते हैं इथाइलिन बेस्ड सिग्नलिंग के अंदर क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द इथाइलिन सिग्नलिंग। इथाइलिन की अगर बात की जाए तो इथाइलिन जो होता है वो ETR1 के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ETR1 इज़ द इथाइलिन ट्रांसपोर्ट रेट। ETR प्रमोट करता है CTR1 को। CTR1 से बनता है EIN2, EIN2 से EIN3, और EIN3 से ERBP, और ERBP या ERF, और इससे क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब कि इथाइलिन से ETR1 बनेगा, CTR बनेगा, और EIN2 और EIN3, और लास्ट में बनता है इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर ERF, इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर। दूसरी बात, यहाँ पे CTR का मतलब क्या है, तो CTR का मतलब है यहाँ पे कुकुम्बर फैमिली के अंदर ये हमें सीड जर्मिनेशन बढ़ा के जाता है इथाइलिन। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इथाइलिन भी जो है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो दिस वन इज़ द लास्ट सिग्नलिंग। इसके अंदर हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो सिग्नलिंग है हमने अलग अलग देखे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो हमने 5 प्रकार की सिग्नलिंग देखी है उनको हम एक साथ देखेंगे। अब मतलब एक तरीके से हम कहें कि उनका समराइज फॉर्म अब देखेंगे कि वो कैसे जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है समरी ऑफ ऑल सिग्नलिंग, मतलब जितनी भी सिग्नलिंग हमने देखी है उनकी समरी। तो समरी की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड।
तो सीड के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है टेस्टा, फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर मिलता है एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही हम ये जो देख रहे हैं ये सीड है एरिबोडोप्सिस का जो कि डाइकोट है, तो यानी कि उसके अंदर हमें 2 कोटलीडन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कितने? 2 कोटलीडन्स। यहाँ पे दिस वन इज द रेडिकल, रेडिकल के जस्ट नीचे हमें मिलता है माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म, और ये है हमारा हाइपोकोटाइल रीजन। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिबोडोप्सिस इज डाइकोट सीड्स। नाउ जैसे ही अगर हम लाइट की बात करें, पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं लाइट से, तो लाइट के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ा रहा है। लेकिन कौन सी लाइट चाहिए यहाँ पे, हमें रेड लाइट चाहिए, आर रेड लाइट की हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। दूसरी बात, जैसे ही लाइट बनेगी, लाइट से क्या मिलेगा हमें, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम बढ़ाएगा जिब्रेलिक एसिड को, जिब्रेलिक एसिड से एम्ब्रियोनल ग्रोथ हो जाती है। क्लियर बात यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, कोल्ड की अगर बात की जाए तो कोल्ड यहाँ पे बेसिकली है जो कि कोल्ड स्टोरेज वाले सीड्स होते हैं उनके लिए, तो कोल्ड स्टोरेज वाले सीड्स को भी ये क्या करता है, जर्मिनेशन बढ़ा के जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो जर्मिनेशन है उसको प्रमोट करेगा। इसके बाद में शुगर की बात की जाती है तो शुगर जो है वो प्रमोट तो करता है, लेकिन शुगर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वो इनिबिट भी करता है। तो लेकिन थोड़ी अमाउंट जो शुगर है वो भी क्या करती है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, मतलब एम्ब्रियोनल ग्रोथ को वो प्रमोट करती है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन जो है वो ABA को क्या करता है, इनिबिट करता है, और ABA को इनिबिट करता है एक और जिब्रेलिक एसिड। तो ये दोनों के दोनों ABA को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, और ABA को इनिबिट करने का मतलब है कि जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ABA बन जाता है तो ABA बनने की वजह से जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि अगेन ये साइन आ गया और ये साइन क्या है, रुकने का साइन है। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात की जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है ARF10, और ARF10 क्या होता है, तो ARF10 की आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन रेस्पॉन्स फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, ABA के सिंथेसिस को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन वर्क एज ए इनिबिटर ऑफ सीड जर्मिनेशन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे ये क्या करके जा रहा है, देखो ABA के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, और ABA का सिंथेसिस अगर हो जाएगा इसका मतलब सीड का जो जर्मिनेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यही रीज़न है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जब अकेला फंक्शन करता है, मतलब सिंगल वर्क ये जब करता है, तो ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है। इज़ दैट क्लियर। एंड लास्ट हार्मोन यहाँ पे जो हमने देखा था वो है हमारा बार्सिनोस्टेरॉइड्स, ये भी क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से हमने समराइज फॉर्म के अंदर सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में और एसिड के बारे में और केमिकल्स के बारे में बात कर ली। पहला हार्मोन आपको मैं बता दूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करके जाएगा, एब्सिसिक एसिड को बनाएगा, मतलब सीड जर्मिनेशन को रोकेगा। दूसरी बात, इथाइलिन सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को बढ़ाएगा, बार्सिनोस्टेरॉइड सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, और इसके बाद में लाइट के अंदर हमने फाइटोक्रोम रेड लाइट देखी तो सीड जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, कोल्ड स्टोरेज सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, शुगर सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। लेकिन शुगर जो है वो एब्सिसिक एसिड को भी बनाता है, ध्यान रखना, ज़्यादा शुगर, और अगर शुगर की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो सीड जर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये था हमारा सारा का सारा जो फॉर्म था, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म था कि किस तरीके से जो सीड जर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है हमें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं किसी भी हार्मोन, किसी भी जीन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।